Hello and welcome to VLearn. This is Session 1, Part 1, Tally 9 and ERP 9. Introduction of Accounting and Tally 7.2. Topics to be covered: Introduction to Accounting, Introduction to Tally 7.2, Company Information, Gateway to Tally, Display Menu. Introduction of Accounting. In introduction of accounting, the first thing comes into our mind, that is, what is accounting? Accounting क्या होती है? Accounting is basically, हम ये बोल सकते हैं कि एक रिकॉर्ड मेंटेनेंस टेक्निक होती है। यहाँ जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक कंपनी के अंदर की जाती हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उन सब की एक मेंटेनेंस होती है। एक बुक के अंदर जब हर चीज़ की रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं, वो अकाउंटिंग होती है। बट yes, this is what the simple thing to understand about the accounting, but account इससे ज़्यादा है। Accounting is all about measuring your finance, measuring your money, measuring your activities related to your money. In that case, आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितनी है, आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं और वो चीज़ें कितने अमाउंट की हैं, आपको कितने पैसे देने हैं, कितने लेने हैं, ये सब जो चीज़ें होती हैं वो सब अकाउंटिंग के अंदर आती हैं। That is why accounting is the simplest term. It's keeping track of our income, expenditure, assets and liabilities. This is true for a business, for a household or for an individual. अकाउंटिंग एक सिंपलेस्ट टर्म है। इसका बेसिक पर्पस होता है इनकम एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड मेंटेन करना, असेट्स लाइबिलिटीज को देखना। ये बिजनेस में यूज होती है, हाउस होल्ड में यूज होती है और एक इंडिविजुअल अपने नॉर्मल पर्पस में भी उसे यूज कर सकता है। When it comes to the official definition of accounting, yeah, correct and bookish, we can say that in a very theoretical line, accounting की definition क्या होती है? So accounting is what? The art of systematic recording, classifying, summarizing in a sufficient manner and in terms of money, transactions and events which are in part at least of financial characters and interpreting the result thereof. That means ये एक आर्ट है जो कि एक सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करता है, उनकी क्लासिफिकेशंस होती हैं, सम अप होता है और वो भी एक सिस्टमैटिक तरीके पे। किसका? मनी का, किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शंस का, किसी भी तरीके की इवेंट्स का, फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो सब अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड होती हैं। In that case, yes, there are few terms. When it comes to accounting की कुछ terms होती हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी होता है। वो terms क्या होती है? First is accounting terms में accounting terms can be any of a four type. Accounting term किसी भी इन चार तरीके से हो सकती है। या तो वो term assets, liabilities, expenditure, income में से रिलेट होगी। In terms of assets है तो something which business earn, यानी कि जो business को मिलेगा। लाइबिलिटी बिजनेस ओन्स टू अदर, जब बिजनेस ने किसी से लिया था तो दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं आपको रिटर्न करना पड़ेगा। सो व्हाट अ बिजनेस ओन्स इज योर लाइबिलिटीज। एक्सपेंडिचर, अ सोर्स ऑफ एक्सपेंस फॉर रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए जब आप किसी तरीके का खर्चा करते हो, दैट इज एक्सपेंडिचर। इनकम, अ सोर्स ऑफ अर्निंग अ मनी इन द बिजनेस। सो बिजनेस के अंदर जब किसी चीज की इनकम, यानी कि हम जब पैसा जनरेट करते हैं कहीं से, तो वो इनकम होती है। सो दैट इज व्हाट, तीन कैटेगरीज के अंदर हम लोग अकाउंटिंग टर्म्स को डिवाइड करते हैं: असेट्स, लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर, इनकम। नाउ व्हाट आर द अकाउंटिंग रूल्स? अकाउंटिंग रूल्स क्या होते हैं? व्हेन कम्स टू द अकाउंटिंग रूल्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री part, but yes, these rules are basically called the golden rules of accounts. हमारे accounts maintain करने के ये golden rules होते हैं और पूरी accounting इन ही तीन rules में जो है वो divide होती है। So in that case, it is classified as personal account, real account, nominal account. यानी कि our account या accounting के जो rule हैं वो तीन accounts में divide हैं: personal, real, nominal. Now what are these rules? Now the first rule is what? Debit the receiver, credit the giver. Second is debit what comes in, credit what goes out. Third one, or we can say third rule is debit is all expenses and losses, credit is all income and gains. Okay, we will more simplify it. ये जितने भी accounting के rules हैं इसे थोड़ा सा simplify करते हैं. When it comes to these sides, or we can say the things to be considered in the financial, there were two things. One is debit and another is credit. यानी कि एक पैसा कहीं से डेबिट होगा, कहीं क्रेडिट होगा। इन दैट केस जब हम पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं
डेबिट वो लोग होते हैं जो रिसीवर होते हैं, क्रेडिट वो होते हैं जो गिवर होते हैं। दैट मीन्स पर्सनल अकाउंट की ट्रांजैक्शन करते वक्त डेबिट साइड पर वो आएंगे जो रिसीवर होंगे, क्रेडिट साइड पर वो जो गिवर होंगे। रियल अकाउंट की एंट्री करते वक्त डेबिट वुड कम्स इन, दैट मीन्स रियल अकाउंट जब मेंटेन किया जाएगा तो उस केस में जो भी चीज ऑर्गेनाइजेशन में आ रही है वो डेबिट होगा, दैट इज व्हाट कम्स इन। क्रेडिट इज व्हाट गोज आउट, जो जाएगा, मतलब आप जब किसी को दोगे तो वो क्रेडिट हो जाएगा। इन नॉमिनल अकाउंट डेबिट इज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब हम किसी भी तरीके के एक्सपेंस और लॉसेस को मेंटेन कर रहे हैं तो उस लॉसेस को मेंटेन करने के लिए एक्सपेंस और लॉस जो भी होगा वो डेबिट होगा और हमारे इनकम एंड गेन्स जितने होंगे वो क्रेडिट होंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट द सिंपल एंड बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, और वी कैन से दैट पूरी अकाउंटिंग इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंगली होती है, एंड इट्स अ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। नाउ next is accounting trial. Accounting trial is basically the sequence is the best representative in a flow diagram. That is what trial accounts में it's always transactions which are recorded. When it comes to voucher, it must be classifying. When it's classifying, तो जितनी भी transactions होंगी they entered into the general entries. At the same time, yes, उसके लिए to consolidate that all you need trial balance. देन इंडिविजुअल एंट्रीज को इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट अप करने के लिए यू हैव अ लेजर्स अकाउंट। एट द सेम टाइम रिपोर्ट जनरेशन के टाइम पे यस कंपनी मस्ट हैव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। दैट इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस, जैसे अकाउंटिंग के अगर टर्म्स की बात करें तो ट्रांजैक्शंस, वाउचर्स, जर्नल एंट्रीज, ट्रायल बैलेंस, लेजर अकाउंट, पी&एल अकाउंट, बैलेंस शीट्स और ऑल दैट। ये होते क्या है? ट्रांजैक्शंस आर ऑल रिकॉर्डिंग्स कि आपने क्या किया, कितना काम किया। वाउचर्स आर क्लासिफाइंग देम कि किस तरीके की ट्रांजैक्शंस हुई और किस वाउचर पे हुई। जनरल एंट्रीज इज ऑल उन एंट्रीज की रिकॉर्डिंग जो होती है वो जनरल एंट्रीज में होती है। व्हेन इट कम्स टू ट्रायल बैलेंस इट इज ऑल कंसोलिडेटिंग योर एंट्रीज। एट द सेम टाइम जब इंडिविजुअल लेजर के इंडिविजुअल एंट्रीज को आपको डिवाइड करना होता है, उन्हें पोस्ट अप करना होता है, आप उन्हें कहाँ पोस्ट करोगे? आप उन्हें लेजर अकाउंट में पोस्ट करोगे। देन यस, जब एक फाइनल रिपोर्ट जनरेशन देनी होती है तो इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इट्स बैलेंस शीट। Then now it is all about the basic introductions of accounting. So now we are moving towards the tally. That's what exactly the tally is. Tally is the versatility account package and it's also based on the windowing interface. ये एक versatility account package है जिसके अंदर almost हर तरीके की entry accounting से related हो सकती है. And yes, this is one of the most popular and easy software. We can say that ये वो software है जो बहुत easily use हो जाता है. At the same time, the visible advantage of a package are simplicity, feasible, flexible, speed, or we can say that the scalability are there, real-time access to the data across the location and even with the others applications was there. So that is what कि एक तो सिंपल है, जल्दी समझ में आ जाता है, फ्लेक्सिबल है, हर तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं काम को, स्केलेबल है, वी कैन मेजर आर ऑल दी एक्टिविटीज एंड इट ऑल्सो कंसिडर द रियल टाइम. सो इन दैट केस yes, this is what the first screen of a tally. ये जो हम देख रहे हैं ये tally की first screen है. tally 7.2 कुछ इस तरीके से दिखता है. And an icon as in a tally can be found at the destination directory on a shortcut on the desktop or double click icons on the package. That's very obvious. अगर किसी तरीके का हमने अपने सिस्टम पर शॉर्टकट की मेंटेन करनी है, so tally का वर्जन कुछ इस तरीके से दिखता है 7.2 का. Otherwise, yes, nowadays we have a many n numbers of versions of Tally. One of the famous versions of Tallies are ERP 9. So, but yes, this is what the first introduction about the Tally 7.2. This is the main screen of Tally. We can say that after opening the Tallies or double clicking on the shortcut of the Tally, we got this screen. This is what exactly called as we can say that the gateway of Tally. हम इसे mainly gateway और main screen भी बोलते हैं Tally की. When it comes to company information, yes, company information की window कुछ इस तरीके की होती है जो कि when person wants to create a company on a tally, because that's very obvious, जब accounting transactions करनी है तो उसके लिए we need a company. एक company में ही तो सारी transactions होंगी. So in that case, Control C and yes, we can use the or we can create the company for that.
कंट्रोल सी प्रेस करके हम एक कंपनी की क्रिएट विंडो पर आ सकते हैं, जो विंडो कुछ इस तरीके से दिखती है। कंपनी इंफॉर्मेशन स्टेटस, कंपनी इंफॉर्मेशन स्टेटस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती हैं जो देनी होती हैं। दैट इज व्हाट वी कैन सी ऑन दैट टेबल फील्ड पार्ट। दैट मीन्स ये सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के बारे में आपको देनी होती है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन सी इंफॉर्मेशन मैंडेटरी है और कौन सी ऑप्शनल, और वो क्या काम करती है वो यहाँ पर ये बताया गया। सो व्हेन इट कम्स टू नेम, यस, कंपनी का नाम देना इट्स मैंडेटरी। फिल इन द नेम ऑफ अ कंपनी, आपको उसमें आप कंपनी का नाम फिलअप करना होता है। व्हेन इट कम्स टू मेलिंग, नेम एंड एड्रेस, कहाँ पर मेल अप होगा, कौन सा मेलिंग एड्रेस है, दिस इज ऑप्शनल। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप इसे फिल करें ही करें, बट येस द मेलिंग नेम ऑफ अ कंपनी कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी नेम ऑल्सो, इससे ये अलग हो सकता है। देन ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस इज ऑप्शनल और इट इज स्पेसिफाइड दैट इफ यू हैव अ ईमेल सर्विस तो आप उसमें अपने ईमेल एड्रेस को डाल सकते हो। इनकम टैक्स नंबर इज येस ऑप्शनल, अगर आपको किसी तरीके की इनकम टैक्स ट्रांजैक्शंस करनी है तभी आप इस नंबर का यूज करते हो, अदरवाइज इस नंबर की जरूरत नहीं पड़ती है। करेंसी सिंबल्स, येस इट्स मैंडेटरी, आप किस कंट्री के अंदर बिजनेस कर रहे हैं, किस कौन से सिंबल के साथ क्या आपका करेंसी सिंबल है, तो ये देना जरूरी होता है। तो जब आप कंट्री चूज करते हैं कंपनी के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली सिंबल जो है वो ले लेता है। देन यस मेंटेन, मेंटेन इन टर्म्स ऑफ अकाउंट, आप अकाउंट कौन सा मेंटेन करना चाहते हैं, विद इन्वेंट्री वाला मेंटेन करना चाहते हैं या सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करना चाहते हैं या दोनों। सो इन दैट केस यस इट इज मैंडेटरी, ताकि एक जब बुक मेंटेन होती है तो वहां पर एक आइडिया जनरेट हो जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट्स यू आर मेंटेनिंग, आर योर अकाउंट्स आर रिलेटेड टू इन्वेंट्रीज और नॉट। So choose as per the company's requirement. Then financial year, financial year is again mandatory part. Then के कौन सा फाइनेंशियल ईयर है, जैसे लाइक फाइनेंशियल ईयर स्टार्टेड फ्रॉम 4 एंड एंड विद मार्च, सो अप्रैल एंड मार्च की एक डेट आपको लेनी होती है, एंड फाइनेंशियल ईयर देना मैंडेटरी होता है और उसमें एक डेट स्पेसिफिक हो जाती है कि इस डेट पर आपने इस पर्टिकुलर कंपनी का अकाउंट मेंटेन करना शुरू किया था। देन बुक बिगनिंग फ्रॉम, यस आपकी बुक किस केस में बिगनिंग हुई थी, शुरू कब हुई थी, तो उसमें आप जब डेट मेंशंस करते हैं तो ये बिगनिंग फ्रॉम शुरू हो जाती है। देन टेल वॉल्ट पासवर्ड, टेलीवॉल्ट पासवर्ड इज ऑप्शनल, आप चाहे तो दे सकते हैं और नहीं भी, एज पर योर द कंपनीज रिक्वायरमेंट कि कंपनी किस तरीके का, मतलब दे वांट सिक्योरिटी पासवर्ड और नॉट। देन बेसिस करेंसी इंफॉर्मेशन, दैट इज मैंडेटरी इनपुट एज द रिक्वायरमेंट. So this is what the few companies information status. Now what is televault? Televault is basically a security control. जब किसी भी तरीके की कंपनी को सिक्योरिटी मेंटेन करनी होती है तो वो टेलीवॉल्ट की ऑप्शन को चूज करती है. इट्स अ काइंड ऑफ इन अ पासवर्ड जिसमें आप एक सीक्रेट पासवर्ड देते हैं टू सेफगार्ड योर ऑल द ट्रांजैक्शन, ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द company. So televault is a security mechanism. The technique involved is basically what the encryptions descriptions on the fly. So in that case televault password can be given, change or existing company as well. तो आप उसे दे भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं पासवर्ड को, और एग्जिस्टिंग कंपनी में भी दोबारा से उस पासवर्ड को लगा सकते हैं. दैट्स नॉट समथिंग लाइक कि क्रिएट करते वक्त ही आपको डिसाइड करना है. Then load the desired company and use the Alt F3 proceeding to the company information screen. सिंपल सा है, जब आपको किसी भी तरीके की ऑल्ट्रेशन करनी है कंपनी के अंदर, जैसे आपको अपना पासवर्ड चेंज करना है या न्यू पासवर्ड अप्लाई करना है, सो इन दैट केस Alt F3 और आपके सामने कंपनी इंफॉर्मेशन स्क्रीन खुल जाती है. Then yes, go to the televault and mention the company's password. तो televault password आप वहां पर बताएंगे and it is change the password. Now this is what the features, by using F11 accounting features you can create the features which you want and you can choose many of the things in this case. This is what operations कि किस तरीके से कंपनी के सारे ऑपरेशंस होंगे. सो इस केस में आपको बहुत सी चीज़ों की एनेबलिंग एंड नॉन एनेबलिंग करनी होती है. सो इन दैट केस आपको इंटीग्रेटेड अकाउंट एंड इन्वेंट्री चाहिए, या अलाउ मल्टीपल करेंसी, अलाउ द इनवॉइसेस, एंटर द परचेज इन द इनवॉइस फॉर्मेट. तो वी कैन सी दैट यस इन सारे ऑप्शंस के आगे वी हैव टू से येस और नो, येस और नो. सो जितने भी ऑप्शंस के आगे वी पुट येस, उस तरीके की ट्रांजैक्शंस जो है वो टेली सॉफ्टवेयर के अंदर अलाउ हो जाती है कि आप यस इस तरीके की ट्रांजैक्शन टेली सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं. The next is yes, there are few shortcut keys.
कुछ टेली के अंदर शॉर्टकट कीज होती हैं विच आर गुड टू अंडरस्टैंड, लाइक F1 से कंपनी सिलेक्ट की जाती है. जितनी भी कंपनीज आपके टेली सॉफ्टवेयर में बनी हो, यू कैन सिलेक्ट बाय F1, देन विद द हेल्प ऑफ F2 टू गिव द डाटा इन अ वाउचर और एनी रिपोर्ट और इन दी डिस्प्ले. सो जब आपको किसी भी तरीके का डाटा इन वाउचर देना है, सो F2 फॉर दैट, F5 फॉर एनी काइंड ऑफ पेमेंट, F6 फॉर एनी काइंड ऑफ रिसिप्ट्स, F7 फॉर द जनरल अकाउंट्स. जब आपको जर्नल पर जाना है तो आप F7 दबाएंगे. जब आपको किसी भी तरीके की पेमेंट या रिसिप्ट एरियाज में जाना है तो F5 एंड F6 फॉर द रिस्पेक्टिव वन, देन F8 फॉर द सेल्स, F9 फॉर द परचेज, F10 फॉर रिवर्सिंग द जर्नल्स, F11 for features of the company, F12 is a configurations in the company. इसके अलावा Alt plus R, it's what rewrite the data of a company report. अगर आपको कंपनी रिपोर्ट के डाटा को रीराइट करना है. Alt F2 is to change the period of a company. जब आपको टाइम पीरियड चेंज करना है तो इस केस में आप Alt plus F2 आपके ऑप्शन को चूज कर सकते हैं. When it comes to Alt F3, this is what to select the company info menu. When it comes to control plus enter, it is to correct the ledger during the voucher entry. Voucher entry के टाइम पर जब आपको ledgers अकाउंट में जाके किसी तरीके की करेक्शन करनी है तो control plus enter. Then Alt plus E, it's what export the balance sheet. जब आपको balance sheet देखनी है. Then Alt I, that is to make an entry from day book. Then Control V is to toggle between invoice and vouchers. जब आपको invoice से voucher में जाना है या voucher से invoice में आना है, so in that case Control V. Then Alt F1 is to close a company and to view the detail. Then Control A to accept a form or the report gets accepted as it is. Gateway of Tele. Gateway of Tele is basically considering the after using a company or selecting a company, a little small window appears जिसको गेटवे ऑफ टेली बोला जाता है. गेटवे ऑफ टेली में 3 तरीके की ट्रांजैक्शंस होती हैं, मास्टर्स ट्रांजैक्शंस और वाउचर्स और रिपोर्ट. एज वी सी इन दी सैम्पल स्क्रीन की, ये जो छोटी सी सैम्पल स्क्रीन है हम इसके अंदर ये देख सकते हैं. मास्टर्स कीज में ऑल अकाउंट इंफॉर्मेशन होती हैं और इम्पोर्ट मास्टर्स होते हैं. वहीं पर ट्रांजैक्शन वाउचर्स में अकाउंटिंग वाउचर्स और इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन होती हैं. रिपोर्ट के अंदर यस बैलेंस शीट्स आर देयर, profit and loss accounts are there, ratio analysis are there, display are there, multi account printing are there, and the final is the quit option. So ये इसके सब categories हैं, पर main categories are master, transaction vouchers, reports. Next is what account info. जब account info पर click करते हैं तो account info में भी 3 main sub और major parts आते हैं. That is what group, ledgers और voucher types. That means इन दिस दैट इज बेसिकली हैपन्स, जहाँ पे ये बताया जाता है कि अगर आपको किसी भी तरीके की अकाउंट इन्फॉर्मेशन देनी है तो वो आप ग्रुप में देना चाहते हैं, उसका लेजर बनाना चाहते हैं या वाउचर टाइप दे रहे हैं, तो वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट बेसिकली अ ग्रुप इज. जब अकाउंट इन्फो से आकर जब ग्रुप पे क्लिक एंटर किया जाता है तो उसके बाद इस तरीके की विंडो खुलती है. दैट मीन्स यू वांट टू क्रिएट अ सिंगल ग्रुप और अ मल्टी ग्रुप. In that case, once you select a group option, you will see a part of a screen like this. That is what the single group option is useful when you wish to work on one group at a time. So multiple saves time and labor and useful to the work on the subgroup. अगर किसी तरीके के subgroup पर काम करना है तो multiple group, नहीं तो otherwise single group is more better. दिस इज व्हाट लेजर क्रिएशन, जब किसी भी तरीके की लेजर प्रिपरेशंस होती हैं. सो लेजर क्रिएशंस के अंदर यस, जब भी हम लेजर पर एंटर करते हैं, सो लेजर पर एंटर करने के बाद इस तरीके की कुछ विंडो खुलती है. तो जहां पर हमें बताना होता है कि इट्स अ कैपिटल अकाउंट और क्या इन्फॉर्मेशन उसकी देनी है एंट्री की, तो वो लेजर अकाउंट में आ जाता है. नेक्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन पार्ट, जो कि F12 जो हमने शॉर्टकट की में पढ़ा था कि F12 प्रेस करके अकाउंटिंग की टेली के अंदर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो आती हैं. दैट इज व्हाट स्किप द डाटा फील्ड इन द क्रेडिट मोड और यूज द सिंगल एंट्री मोड ऑफ दिस और शो द इन्वेंट्री डिटेल्स. तो वी प्रेस येस और येस, जिस चीज को भी एनेबल करना है उसके लिए येस, जिसे नो करना है दैट इज फॉर नो. वाउचर टाइप, वाउचर टाइप्स यस, हमने देखा था अकाउंट इन्फो में एक वाउचर टाइप की ऑप्शंस भी थी. वी कैन गो बैक एंड लुक एट दिस.
दैट इज वाउचर टाइप. अकाउंट इन्फो के अंदर वाउचर टाइप था. वी डिस्कस अबाउट ग्रुप, लेजर्स एंड नाउ वाउचर टाइप. वाउचर टाइप बेसिकली 16 डिफरेंट टाइप्स के वाउचर्स होते हैं एंड डिफरेंट वाउचर्स टाइप्स आर क्रिएटेड फॉर द डाटा एंट्री पर्पसेस. सो दैट इज व्हाट. और किस तरीके की होती है वो वाउचर स्क्रीन? वो वाउचर स्क्रीन कुछ इस तरीके की होती है. दैट मीन्स जब किसी भी तरीके रिलेटेड वाउचर एंट्रीज करें, दैट इज व्हाट अ वाउचर इज अ बेसिक डॉक्यूमेंट विद द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर एंटर्ड. देन डिस्प्ले मेन्यू. अगेन दिस इज व्हाट डिस्प्ले मेन्यू, जहां पर चीज मेन सम अप थिंग्स होती हैं डिस्प्ले मेन्यू में. दिस इज व्हाट ट्रायल बैलेंस, अकाउंट बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कैश फ्लोज फंड्स, डे बुक, लिस्ट ऑफ अकाउंट, एक्सेप्शंस रिपोर्ट, ये सब जो होता है हमारे डिस्प्ले मेन्यू में होता है. सो दिस मेन्यू इज टू बी यूज्ड फॉर द व्यू ऑफ अ डिफरेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट. अगर हमें डिफरेंट अकाउंटिंग रिपोर्ट्स देखनी है तो उस केस में हम डिस्प्ले मेन्यू में जा सकते हैं. नाउ हाउ इट्स लुक. डे बुक इज लुक लाइक दैट. वो इस तरीके की स्क्रीन खुलती है. डे बुक गिव्स द बैलेंस ऑफ ईच डे ऑफ एन अ वाउचर टाइप एंड हैज बीन सिलेक्टेड. When all the transactions are correctly entered, so the day book are automatically created. जब हर तरीके की transactions होती चली जाती हैं, जैसे आप जनरल पुट करते हैं और एक पूरी एंट्री प्रिपेयर करते चले जाते हैं टैली के अंदर, तो डे बुक्स उसकी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती चली जाती है. उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क करने की जरूरत नहीं होती. Then financial statement, this is what tally balance is consolidating of ledger balance, tally display trial balance through the display and then trial balance, we can say that. tally के डिस्प्ले में जाकर ट्रायल बैलेंस की एक स्क्रीन होती है. आप ट्रायल बैलेंस पर जब एंटर करेंगे तो ये ट्रायल बैलेंस की स्क्रीन खुल जाती है. नेक्स्ट इज व्हाट दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर नेक्स्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इज बेसिकली व्हाट वर्किंग ऑन दी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. कितने एक्सपेंडिचर्स एंड इनकम्स है वो यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो ऑटोमेटिकली एंटर करता चला जाता है. सो दिस इज व्हाट स्टेटमेंट डिस्पाइट दी ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्नड और लॉसेस सफर्ड बाय ड्यूरिंग द बिजनेस फॉर द लास्ट 1 year. सो इट इज व्हाट बेसिकली गिव यू द आइडियाज कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो यहाँ पर एज एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स शो होती हैं. Then yes, another is what balance sheet, जो कि financial statement का one of the sum up part है. So balance sheet भी yes, it's one of the self-creating thing. So it is provide the information about financial status. ये कंपनी के पूरे financial statement के बारे में बता रही होती है. How we can see balance sheet? हम balance sheet को देख कैसे सकते हैं? With the help of Alt plus F1. Alt के साथ F1 प्रेस करने पर एक balance sheet की स्क्रीन खुल जाती है. So that comes into balance sheet. So yes, there are few questions which you have to do it yourself. First is what are the trial rules? Trial rules क्या होते हैं and what is the televolt? Televolt क्या होती है? तो आपको इन दोनों के बारे में बताना है कि ये exactly क्या होता है. So yes, this is all about for the today's session. We were winding up here. Thank you so much. Happy learning. We learn.